Hi, I'm Aniket. I'm currently doing Masters in Physics from IIT Kanpur. So the topic of today's lecture is electrostatic force and electric field. So the outline for the lecture will be, the first we'll start with electrostatic force. So-called Coulomb force. Then some examples, like some problems of it, and then electric field as well. And let's see how far can we go. Let's start with the basic of electrostatic. So the basic of it is electric charge. So what is electric charge? I mean, we heard this a lot from everybody ki electric charge, but what actually is electric charge, it's actually very fundamental question, जैसे होता है ना कि when we say mass क्या होता है, when we say length क्या होती है, it's like that. तो the charge is a property of a matter जो क्या करता है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करने के लिए सम इंटरेक्शन की वजह से वो एक इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, लेट मी एक्सप्लेन इट. सो क्या होता है कि व्हाट वी हैव सीन इज टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, टू काइंड्स ऑफ बिहेवियर, जिसको हमने बोला चार्जेस, जिनका बिहेवियर ऐसा होता है दैट दी लेट्स से प्लस प्लस माइनस माइनस plus minus and these two are equivalent. So the plus plus, this is the first kind of charge, this is the second kind of charge. So दोनों के बीच में repulsive force होता है, repulsive interaction होता है. What does it mean? कि वो they will repel each other. अगर आपके पास में एक बॉल है, let's say the second ball as well, और दोनों में आपने चार्जेस रखे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, the first kind of charge, तो वो क्या करेंगे, they will repel, this one will act force on this one and this one similarly act force on this one. So this is the first kind of charge. The second one behave the same way, but the interesting thing is when they both, दो अलग अलग टाइप के जब चार्जेस होते हैं, when they interact, तो उनके वजह से एक different kind of interaction आता है, that is attraction, the attraction behavior. So let me just summarize it. So we have two kinds of charges. The first, positive charges, negative charges, and the interaction between them and the study of it, that's what the electrostatic is. Okay, so then the Coulomb came and he saw the behavior of it, and he tried to let's say formulate the interaction between them, है ना. तो what he found is कि the force between two charges, तो दो चार्जेस हो गया. लेट्स से वी यू हैव फर्स्ट चार्जेस Q1, सेकेंड चार्जेस Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R. ओके, सो द फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस वन इज द इंटरेक्शन फोर्स or the Coulomb force between the two charges, है ना. Let's say if you have second kind of charges, because Q1 could be positive or negative, right? So depending on that you will put here with sign, हाँ. तो if it is Q1 is, let's say Q1 is replaced by minus Q1, then there will be minus sign here as well. And what minus sign generally implies the attraction, attractive force, हाँ. So the first thing is electrostatic force. The form of this is F equals to some constant, the proportionality constant, the magnitude of two charges, not exactly magnitude but the value of the charges, and divided by the square of the distance between them. Q1, Q2, and the distance between them is R.
that's what your force is, and it's a vector quantity, so obviously there will be direction of force. तो दैट विल बी डिपेंड ऑन कि किस पे लग रहा है. लेट्स से यू सेड कि Q2 पे लग रहा है, सो F on Q2 because of Q1, so the force will be this way if the both are positive. Okay, and if one of them is negative, then there will be obviously a minus sign that I said, and it actually signifies the attraction interaction, है ना. तो so this is what more or less about the electrostatic force. This the thing is the property of it. Let's discuss about the property. You know कि it's fine that Coulomb has found it, but the thing is कि what about if I inserted one more charge here, Q3? What about that? So at the first scene it seems very obvious कि ये follow करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को. जैसे आई वुड से कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो कितना आएगा, तो यू वुड से कि बाय द सेम फार्मूला वो आ जाएगा. बट इट्स ट्रू, इट्स करेक्ट, बट इट्स नॉट दैट ऑब्वियस, क्योंकि हर बार लाइक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेजेस इट वोंट बी ट्रू एवरीवेयर. सो इट्स वी आर लकी दैट ऐसा होता है, एंड इट हेल्प्स द कैलकुलेशंस एज वेल, बट रिमेंबर इट्स नॉट ऑब्वियस. हाँ, so the property number 1 will be it obey superposition principle. So what does it mean कि if you have 3 charges Q1, Q2 and Q3, so the forces by Q2 and Q3 on Q1 है ना. तो this one will be R1, let's say this one is R2, so the forces will be this one F1, this one is F2, assuming all the 3 charges are positive. huh? So the net force F net is F1 vector plus F2 vector. And remember, these are the vector addition, so you have to follow the vector addition rule as well. So far so good, it's good, right? We have found कि कैसे दो चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं. We knew कि अगर if we add one more charge तो क्या होगा, है ना. तो this is what the forces, all about the forces, electrostatic forces that we have. So let's just try to do some problem as well to give a glimpse of electrostatic force. Let's say I said a square, let's take a square जिसके चार्जेस है we can take any like any charges, but let's be specific with the this one. It's a square. Question is square of लेंथ L, है ना, और यू वुड से ए भी ले सकते हो आप. तो what you want to find about like the forces on electrostatic force on this Q because of rest of the charges, है ना. So the like we just saw just a bit ago कि कैसे it follows the superposition principle, and that what we will apply here. So the F net is equals to the forces on Q because of 4Q ये vector plus force on Q because of 3Q vector plus force on Q because of 10Q, and this is the vector. So I'll just draw it here. Let's Q here. तो इसके वजह से फोर्स लगेगा इधर, बिकॉज अज्यूमिंग ऑल द क्यूज आर पॉजिटिव. हाँ, तो ये इसके वजह से फोर्स लगेगा इधर, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक फोर्स लगेगा इधर. तो ये रहेगा द लेट मी जस्ट राइट द फॉर्म ऑफ इट, फॉर्मूला इफ़ यू हैव फॉरगॉटन दैट. तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, है ना.
k is some constant coefficient. So this one will be 3k q square by l square, ये रहेगा 4k q square by l square, और ये इट्स अ स्क्वायर, तो ये लेंथ हो जाएगी √2l, सो यू कैन फाइंड इट दैट वे एज वेल. तो ये हो जाएगा आपका 5k q square by l square. Yeah, now you can just write it in a vector form. बस that's it. You have to do the vector analysis, that's it. तो we can write it in a vector form. तो let's assume कि ये x होगा, ये y होगा, तो इसके वजह से जो लगेगा 4k, ये आ जाएगा तुम्हारा 4k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर इन माइनस वाई कैप प्लस ये 3q के वजह से 3k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर इंटू एक्स कैप प्लस, और इनका ये सी द थिंग इज कि इट्स अ परपेंडिकुलर, लाइक इट्स अ बाइसेक्टर काइंड ऑफ थिंग. तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा सेम होगा, एंड इट्स अ 90, सो दिस विल बी 45, दिस विल बी 45, है ना. सो द थर्ड वन, दिस वन, इट गॉट स्प्लिट इनटू 2 कंपोनेंट, so it's a form of vector. तो हम लिखेंगे इसको 5k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर इंटू, वी कैन टेक इट आउट 1/√2 एज वेल, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपोनेंट स्प्लिट करेंगे तो cos 45 sin 45 दैट विल बी 1/√2. तो 1/√2 टेकन आउट, है ना. सो इट विल बी एक्स कैप माइनस वाई कैप, क्योंकि एक्स कैप इधर जाएगा, माइनस में है क्योंकि ये ऊपर में प्लस है, सो द नेगेटिव, लाइक डाउनवर्ड इज द नेगेटिव. So the final answer, if I would have to remove all, तो the final answer ये इधर आ जाएगा f net equals to let's just collect the x component l square plus 5k q square by √2 l square, ये आ जाएगा x कैप में माइनस ब्रैकेट में 4k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर प्लस 5k q स्क्वायर बाय √2 l स्क्वायर, और ये हो जाएगा y कैप. दिस इज व्हाट द फोर्स इज. सो ये कंपोनेंट फॉर्म में है, इट हैज़ अ 2 कंपोनेंट, एक जाएगा इधर में. सो इस चार्ज पे, q चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है. इमेजिन वी हैव कैलकुलेटेड द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कि कितना उस पर फोर्स लगेगा. इट्स एक्चुअली अमेजिंग, नो. So yeah, that's what the question is, and it asks about the forces, and we have calculated the forces. So let's move to another example if you wish. तो इसी तरह like we can solve a lots of question, like we can have a lots of question. So this is what the all electrostatic force all about, है ना. तो now there comes the question of कि you saw it, लेकिन there is a question कि जैसे let me just explain you, ये Q है, the second one is Q here, Q1 and Q2, but you saw कि यहाँ पे बीच में गैप है, right? So how do he know कि इसको इधर मूव करना है, इधर मूव करना है? देयर मस्ट बी समथिंग इन बिटवीन जो उसको बताए कि इधर मूव करना है भाई, ये इधर मूव करना है ना. तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, क्योंकि यू कांट से कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज समथिंग इट इज़ देयर दैट्स इट. मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इट्स देयर दैट्स इट, कि सो जस्ट अज्यूम इट कि ऐसा ही होता है. नो, राइट. क्योंकि लाइक इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल कि तुम्हारे पास एक बॉल है एंड यू हैव सेकेंड बॉल, इट्स टू फार, लेट्स से यू हैव दिस काइंड ऑफ बॉल, लाइक से यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, बट इसको कैसे पता कि इसको इधर जाना है, इधर जाना है, राइट? सो देयर मस्ट बी समथिंग इन बिटवीन द टू बॉल्स जो उसको बताए. दैट्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड कम, है ना. So let me define it, what is electric field for you.
सो लाइक इन लेमन लैंग्वेज यू से कि इन दोनों के बीच में कुछ है, सम फील्ड इज देयर हु टेल्स टू Q2 टू मूव अवे फ्रॉम Q1 और मूव टूवर्ड्स Q1, है ना. तो दैट्स व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल अबाउट. बट मैथमेटिकली यू हैव टू गिव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज वेल. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना ज़रूरी है. दैट्स व्हाट ऑल मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स अबाउट. तो व्हाट यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कि जो फोर्स लगता है एक यूनिट चार्ज पे, है ना. लेट्स से कि यू हैव 4Q ऑफ चार्ज हियर Q चार्ज. तो इसके वजह से इस पर कुछ फोर्स लगेगा. बट हम ऐसा लाइक व्हाट विल टेक इज कि पर यूनिट चार्ज इफ़ यू हैव दिस Q, लेट्स से दिस वन इज अ Q1 Q2. अगर Q2 1 कूलम हो जाए, मतलब कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, है ना. तो दैट्स व्हाट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कूलम. तो अगर Q2 1 कूलम हो जाए तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस Q1, दैट्स व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज. तो दिस वे वी डिफाइन इट. तो हम डिवाइड कर देते हैं उसके चार्ज से. सो इट्स लाइक कि Q1 की वजह से अगर Q2 1 कूलम होता कितना फोर्स लगता. तो इट्स सिंपल, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट या. So this is what the electric field is. It's also and vector quantity. So it also follows the superposition principle that we saw. And here also it's not obvious just because कि F आपका superposition principle follow करता है, इस वजह से electric field also follows the same principle. But if it were not here in electrostatic, so it wouldn't have been a obvious thing, है ना. तो yeah. सो लेट्स ट्राई टू कंप्यूट सम इलेक्ट्रिक फील्ड कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना. तो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल दैट वी डिड देयर 4Q. आई गेस हियर वी हैड 3Q 4Q एंड Q. हाँ, सो एनीवे तो यू कैन हैव एनीथिंग. तो इस पे इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट. तो हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, लेट्स से एट जस्ट गिवन यू द पॉइंट P. तो इस पॉइंट पे तो F नेट एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय द चार्ज एट पॉइंट P. बस इट्स अ सिंपल. तो दैट्स व्हाट यू डू. आप वो कैलकुलेट करेंगे F नेट इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय दैट charge itself. So we have calculated it earlier. We'll take that F net here and we'll divide by this Q. तो let me just calculate one thing कि यहाँ पे जैसा क्या आएगा कि 4K Q इंटू QP डिवाइडेड बाय L स्क्वायर. इसके वजह से आएगा 3K QP डिवाइडेड बाय L स्क्वायर एंड इसकी वजह से कुछ आएगा एंड वी विल स्प्लिट दैट हियर एज वेल. तो देखो सब में QP will be there like in every term. So we'll just divide by that taking common out. तो हमको बस इसको छोड़कर, आप समझ रहे कि इन सबको छोड़ के QP को छोड़कर जितने भी टर्म्स मिलेगी सबका एग्रीगेट करके सब नेट करके you will get the electric field at point P. So this will be 5 क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस L तो ये √2L हो जाएगा. तो 5K Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर और इसका आएगा 1/√2 I कैप प्लस X कैप माइनस 1/√2 J कैप या Y कैप. तो बस दिस वन इज X कैप, दिस वन इज माइनस ऑफ Y कैप और इसको सबको सम कर देंगे तो देयर विल बी द एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन. बस उसमें डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर में जो आपके पास जो QP था दैट वोंट बी देयर. बस and the second example that we did there as well, so you can find it that way. It's a very trivial thing जो निकालना है ना. Now next comes the very interesting thing कि जैसे अगर आपके पास में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. अभी तक क्या था कि द चार्जेस वर डिस्क्रीट, अभी भी डिस्क्रीट है बट इट्स अ पॉइंट चार्जेस, है ना. बट इफ़ यू हैव अ बॉडी एन ऑब्जेक्ट लेट्स से अ रॉड और इसमें
यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट्स अ रॉड और उसकी सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, सरफेस पे, वॉल्यूम पे नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि वो उसमें वॉल्यूम कम होता है, इट्स वेरी रेयर, दिस वन h हाइट और width इज़ वेरी लेस देन द लेंथ l, तो इट्स प्री अज्यूम, तो विल नॉट टेक केयर हियर, लाइक विल नॉट स्पोक अबाउट दिस हियर। तो इसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस, दिस डिस्क्रीट चार्जेस एनीवे एंड बट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज देयर, तो इसके वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, विल लर्न दैट, है ना, फर्स्टली। और सेकंड द एग्जांपल विल बी एनी ऑब्जेक्ट, नो, बट राइट नाउ द कंडीशन इज लाइक फॉर द आवर सिलेबस कि इसमें वी हैव टू हैव सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, जिसमें चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और थोड़ा सिमेट्रिसिटी होती है, इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट। अदरवाइज उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू इंक्लूड अ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। सो लेट्स डू इट, लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट, तो आपको समझ आएगा। सो आई जस्ट इरेज इट हियर, दिस वन। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव अ रॉड, है ना, जिस पे चार्जेस दिए हैं, तो इसकी लेंथ है l और चार्जेस है q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस है लेट्स से h, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट P, फाइंड, लेट नॉट, आई एम नॉट राइटिंग इट, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस। सो कैसे करेंगे, द फर्स्ट थॉट हमारे अंदर आता है, लाइक द फर्स्ट थॉट, क्योंकि वी हैव जस्ट स्टडीड कैसे डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से निकालते हैं ना, कि ईच चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, सम कर दो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट्स इट। बट हियर द प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे चार्जेस तुमको दिए नहीं है कि यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, Q3 है एंड ऑल, सो इट्स जस्ट गिवन एग्रीगेट और द यूनिफॉर्म Q चार्जेस। तो आपको पता करना पड़ेगा कि इस सेक्टर पे, इस सेगमेंट पे या इस अमाउंट ऑफ लेंथ पे कितने चार्जेस होंगे। तो इस वजह से व्हाट वी डू, इट्स ऑल्सो नाउ द डेफिनेशन कि कैसे हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन लैम्डा, दैट इज़ द लाइन चार्ज डेंसिटी। तो व्हाट इट सेज कि द चार्जेस ओवर अ लाइन और लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, तो यहाँ पे Q चार्ज है, इसकी L लेंथ है, तो इसका लैम्डा हो जाएगा Q by L। एंड सिमिलर टू, लाइक इट्स सिमिलरली यू कुड राइट कि लेट्स से कि अब इतने लेंथ पे हो गया, व्हाट अबाउट दिस स्मॉल लेंथ dl, तो तुम बोलोगे कि dq डिवाइडेड बाय dl, that's what your lambda will be। and now you are getting some insight, right, कि हम कैसे अब निकालेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे कि इस dq की वजह से कितना इस पे चार्ज आ रहा है, and we have the dq का relation with q and l। so yeah, let's just solve it कि अब इस because of dl segment charges dq equals to lambda dl equals to q by l into dl। हाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, dE इस पॉइंट पे। तो लेट जस्ट अब इसके लिए आपको एक ये लेना पड़ेगा, लेट्स जस्ट अज्यूम कि दिस इज x, इसको भी लेते हैं x, है ना, लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि आपको चाहिए होगा कि इसकी वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस dx, ये जो dq है इसका और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx, ठीक है। सो dE विल बी k सेम एज dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, इतना प्लस इतना, तो x प्लस h इसका स्क्वायर। वी विल राइट हियर k, dq को लिख देंगे q बाय l इंटू डी डिवाइडेड बाय x प्लस h इसका स्क्वायर, d सिंपल, जिसकी वजह से इतना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये सिर्फ इतना तो पार्ट तो नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, रॉड है एक, तो विल इंटीग्रेट आउट दिस होल इलेक्ट्रिक फील्ड।
बस। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई जो हमने निकाला अभी, एंड विल सब्स्टिट्यूट हियर के क्यू बाय एल इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच इसका स्क्वायर। एंड द लिमिट, अब सोचो इंटीग्रेशन किसके बीच में हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, एक्स के ऊपर, एंड एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ डी क्यू फ्रॉम दिस पार्ट, दिस पॉइंट यू वुड से। तो इसका मतलब कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक उसका अंत हो रहा है, आई मीन लाइक इट्स एंडिंग हेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू एंडिंग हेयर। सो जीरो, और अगर आपको बिकॉज यू हैव पुटन इट हियर एच, तो और एक्स यहाँ से शुरू होता है जीरो से लेकर एल तक बस। सो लाइक आई हैव डन एनी मिस्टेक, हाँ, सो इट्स फाइन राइट। सो लेट अस सॉल्व इट, के क्यू बाय एल and this integration part, this is just an integration that you have to solve. It's like substitution as well, you can do substitution, but let me do it with my own. So this will be x plus h to the power plus 1. तो ये -1 डिवाइड में आएगा, तो इसको लेट मी राइट हियर, है ना, और जीरो से लेकर एल तक। हाँ, तो आफ्टर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट, तो इट्स लाइक माइनस के क्यू बाय एल, और ये आ जाएगा, ये 1 बाय में लाइक -1 है, तो इट्स विल बी इन 1 बाय लाइक, तो इट्स एल प्लस एच माइनस 1 बाय एच, है ना, -1 तो 1 बाय में आ गया, सो दैट विल बी, हाँ, तो ये आ जाएगा, एंड यू विल जस्ट सॉल्व इट। तो इट जस्ट द एक्सप्रेशन इटसेल्फ, लेट मी जस्ट राइट इट कि क्या आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन दिस विल बी लाइक दिस, 1 बाय एच माइनस 1 बाय एल प्लस एच, बस। Yeah, that's what the electric field is. The direction will be this way. If you called it an I cap, J cap, X cap, whatever. So yeah, this is the electric field, huh? Because of, हाँ, तो the point is कि now like what we did, हमने क्या निकाला, हमने निकाला electric field इस point पे because of whole object rod. तो अगर तुम्हारे पास एक rod है, if you inserted some charges there, उसकी वजह से किसी एक point पे एट सर्टेन पॉइंट एच, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका एक्सप्रेशन था वो, आई हैव जस्ट रिमूव्ड इट। तो या लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल कि कैसे, इफ यू हैव एग्जांपल, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, हाँ, एग्जांपल। तो इफ यू हैव अ रिंग और इस पे चार्जेस हैं, लेट्स से क्यू चार्जेस है जिसकी रेडियस आर है, तो बिकॉज ऑफ द चार्जेस इट्स अ सिमेट्रिक रिंग, बिकॉज ऑफ द चार्जेस सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा अगर यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया क्यू, तो दैट्स वेरी लाइक इफ़ यू थिंक, तो इट्स वेरी ऑब्वियस पहली बात कि बिकॉज ऑफ सेंटर पे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस दैट यू हैव, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी ज़ीरो, ये लाइक फ्रॉम जस्ट इंट्यूशन आप बता सकते हैं। बट व्हाट अबाउट कि लेट मी, अगर आपका ये है एंड एट पॉइंट दिस, बिकॉज ऑफ दिस सर्कल, दिस रिंग, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस पॉइंट पे, लाइक द पॉइंट अबव, लाइक इन फ्रंट ऑफ दिस बोर्ड हियर। तो वो लेट जस्ट कैलकुलेट दिस ना, कि कैसे करेंगे। this is a ring, ठीक है, जिसका चार्जेस क्यू दिया है और रेडियस दिया है r। तो इसकी वजह से
एट अ डिस्टेंस d कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, विल कैलकुलेट इट। तो द सिचुएशन इज दिस, एक रिंग है, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो निकालना है। तो विल डू सिमिलरली जैसे हमने पिछले बार किया था, जस्ट सेम स्टेप, बट थोड़ी सी ज्योमेट्री अलग होगी, इस वजह से द कैलकुलेशन विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। तो बिकॉज ऑफ डी क्यू हम लेंगे यहाँ पे एक डी क्यू, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी एक डी क्यू आएगा। अब ये डिस्टेंस सेम है ये भी इससे, क्योंकि इफ़ यू टेक दिस वन, तो ये जो सेंटर है यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया r, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, है ना। दिस वन इज d, दिस वन इज d, तो ये इतना हो गया, ये भी हो गया r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब द डिस्टेंस इज सेम, द dq इज सेम, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हियर de and d, they will be same magnitude, direction is this, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको इसका वेक्टरनेस, लाइक द वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टरनेस, द डायरेक्शन ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर। तो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे कि इसको स्प्लिट कर देंगे दो कंपोनेंट में, ये और ये, इसका इधर वाला एक कंपोनेंट आ गया, इसका भी इधर एक कंपोनेंट आ गया, है ना। तो सिचुएशन इज दिस, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, इसका कंपोनेंट ये डी हो गया, डी का इधर एक कंपोनेंट ले लिया और इधर एक कंपोनेंट ले लिया, डी ई कॉस थीटा। अगर मैं इसको थीटा लेता, इफ़ यू टेक दिस वन थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा। अब ये सिमेट्री है सारी जगह, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, समझ रहे हो। तो इस वजह से दिस वन थीटा, तो ये हो जाएगा तेरा डी, आपका डी ई, तो ये इसकी वजह से एक डी कॉस थीटा, इसकी वजह से डी कॉस थीटा, टू डी कॉस थीटा। अब इधर वाला डी कॉस साइन थीटा एंड डी साइन थीटा, दे विल कैंसल आउट, है ना। देर आर जस्ट टू अपोजिट टू अपोजिट क्वांटिटी विद द सेम मैग्नीट्यूड, और वेक्टर है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यू विल रिमेन विद ओनली 2de cos थीटा हियर, समझ रहे। तो अब ये इट्स नॉट स्पेशल अबाउट दिस टू पॉइंट ओनली, देयर विल बी, इफ यू कंसिडर दिस पॉइंट एंड हियर ऑल्सो, तो अगर ऐसी रिंग है, अगर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे भी कंसिडर करोगे, तो इनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी एट उनके कंपोनेंट जो है साइड वाले, दे विल कैंसल आउट। तो इट्स अ सेम फॉर ऑल होल रिंग दैट यू हैव। हाँ, तो अब नाउ द कैलकुलेशन इज सिंपल। द मेन थिंग वाज टू जस्ट कंसिडर एंड थिंक अबाउट द डायरेक्शन। नाउ द ई नेट जो आएगा आपका, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, है ना, टोटल डी, तो यह आ जाएगा 2de cos थीटा। नाउ रिमेंबर कि हमने यू हैव टेकन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज ऑल्सो, मतलब कि आपने सारे चार्जेस, अगर आपने ऊपर वाले सारे चार्जेस को ले लिया है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से इधर 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 ऐसे आ रही है, तो इनके जो हाफ है इनके वजह से जाएंगी उधर 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 उधर, और उनके सारे कंपोनेंट वाले ऐसे जो रहेंगे, ऐसे वाले वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, इधर वाले इधर वाले इधर वाले इधर वाले, लेकिन जो आगे जा रहे वाले सारे कंपोनेंट सारे एडअप हो जाएंगे, है ना। तो अब इस वजह से जो लिमिट आएगी ना, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपने ये भी कंसिडर किया ये भी कंसिडर किया, तो लिमिट हाफ हो जाएगी। लेट मी जस्ट गिव यू कैसे होगा। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ k dq डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज हियर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एंड द cos थीटा क्या आएगा, d डिवाइडेड बाय दिस वन, है ना। तो ये हो जाएगा 3/2, एक ये वाली टर्म आएंगे ना ये, तो दिस 2 की वजह से, लाइक बिकॉज ऑफ दिस 2 द फाइनल एक्सप्रेशन इज दिस ई नेट। अब द मेन थिंग इज टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी नाउ इट्स डिपेंड ऑन डी क्यू, है ना। तो अब लेट मी जस्ट हियर टेकन आउट द क्वांटिटीज जो कि कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन हो रहा है डी क्यू पे, देर इज नो टर्म डिपेंडिंग ऑन आर इज कॉन्स्टेंट, डी इज कॉन्स्टेंट, के इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, डी इज कॉन्स्टेंट, तो बस बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। नाउ द ईयर थिंग इज कि यहाँ पे जब भी लेंगे हम q/t लेंगे, क्योंकि हमने द अदर हाफ का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वी हैव ऑलरेडी टेकन दैट केयर हियर। जब हमने बोला ये, तो हमने दो यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिया था, तो 2 सॉरी, तो बिकॉज ऑफ दिस 2 दैट वी हैव टेकन, इसका और इसका, इस वजह से हमको हाफ लेना पड़ेगा q/2। So the final answer will be if you I just solve it here कि कैसा हो जाएगा, इसको बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ q/2।
तो दिस टू विल कैंसल, तो आपके पास बचेगा बस K, Q and D डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बाई डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। दैट्स व्हाट योर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसकी डायरेक्शन इधर होगी। इफ़ यू से दिस वन इज x कैप, y कैप, z कैप, वॉट एवर वे यू से। सो लाइक द थिंग इज लाइक व्हाट ऑल दिस टेलिंग यू कि इफ़ यू हैव सिमेट्रिक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और उन पे चार्जेस है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन कि आप सोचो कि द इंटरेक्शन दैट यू सी अराउंड यू, यू हैव द कैलकुलेशन ऑफ इट। तुम उससे कैलकुलेट करके उसका बिहेवियर देख सकते हो, उसके प्रेडिक्शन कर सकते हो एंड ऑल। एंड बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक फोर्स निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, द डिस्टेंस इट ट्रैवल, द टाइम इट हैज़ टेकन, ऑल दोज थिंग्स, ऑल द प्रेडिक्शन दैट यू कुड डू, आप वो सब कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट दी ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस केस। हाँ, नाउ लेट्स टेक थर्ड एग्जाम्पल, जो कि थोड़ा और मैथमेटिकली इन्वॉल्व होगा एंड इट गिव्स यू कि नो कि थोड़ा मैथमेटिकली ओरिएंटेड सम। तो इफ़ यू हैव अ डिस्क, अर्लियर वॉज योर रिंग, नाउ दिस इज अ डिस्क जिसका रेडियस दिया है r, जिस पे चार्जेस दिए है q। लेट मी जस्ट गिव यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन सच केसेस सबसे पहले हमने लैम्डा डिफाइन किया ना, तो नाउ वी विल डिफाइन सिग्मा। व्हाट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इट डज, लाइक हाउ इट इज डिफाइंड, सिग्मा इक्वल्स टू द टोटल चार्जेस इन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। कि जैसे एक लेट्स से कि आपके पास एक सरफेस है, सिलेंडर, इस पे जितने भी चार्जेस होंगे ऑन एन सरफेस, पूरे राउंड में सरफेस जो कर्व सरफेस एरिया होता है उस पर जितने भी चार्जेस होंगे, लेट्स से Q डिवाइडेड बाय उसका कर्व सरफेस एरिया, दैट्स व्हाट योर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर dQ डिवाइडेड बाय dA, है ना। तो सिंपली, तो नाउ there we had found about the dq in terms of lambda, here we have dq in terms of sigma। तो in some question you could have given sigma only, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास मैं सिग्मा भी दे सकता हूँ इसका, है ना। you could have क्वेश्चन जहाँ पे आपका सिग्मा दिया है। तो लेट्स नॉट डू दैट राइट नाउ, लेट्स जस्ट अज्यूम कि q चार्जेस है। सो इट्स बस नाउ द प्रॉब्लम इज हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसको अब लाइक you could solve it in a two way, जैसे लाइक इट्स लॉजिकल राइट, कि जैसे आपके पास डिस्क है तो उसको मैं ऐसे रिंग के फॉर्म में कर सकता हूँ, राइट। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जिसकी थिकनेस दी है समथिंग dr एंड इट्स रेडियस r, सेम यू कुड डू विथ दिस वन विथ dr, है ना, अलग अलग। तो यू कुड डू दैट, सबके लिए कर सकते हो एंड यू कुड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस रिंग, और उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। लेट मी जस्ट गिव यू अनदर मेथड दैट आई एम फॉलोइंग। तो सेकेंडली क्या कर सकते हैं कि यू कुड थिंक अबाउट सम डी ए हियर, सम डी ए जिस पे चार्जेस होगा dq, उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, है ना। अब इसका तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड और पिक्चराइज इट प्रॉपरली। ये हो गया डिस्टेंस r इस पॉइंट पे, और ये पूरी सॉलिड है। सॉलिड मीन्स कि इट्स अ डिस्क, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, द डिस्टेंस d इज गिवन, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। है ना, तो ऐसा अंडर रूट में। तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा DE, इसकी वजह से सिमिलरली मैं यहाँ ले सकता हूँ, यूड से कि यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं, और इसकी वजह से भी आएगा। तो दैट वी विल डू इट, वी कैन डू दैट एज वेल। तो लेट जस्ट टेक इट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे वो आएगी डी के डी क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, इस पॉइंट पे, लेकिन वो आएगी इस साइड में। सिमिलरली यू वुड हैव दिस साइड में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एंड द सेम डी ई, क्योंकि यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ मैं डी ए लूँगा, तो यू विल हैव सेम अमाउंट ऑफ डी क्यू, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सेम आएगी। यू आर फॉलोइंग राइट लाइक कि कैसे हो रहा करके, जैसे सेम सिमिलरली दैट वी डिड इन द लास्ट एग्जांपल। तो इनके कंपोनेंट दैट यू विल स्प्लिट, ये ले लेंगे, हम ले लेंगे दिस वन इज थीटा, ये हो जाएगा थीटा, तो डी कॉस थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये विल बी 2d कॉस थीटा। तो लेट मी नॉट डू इट हियर विद द टू, लेट जस्ट गिव, आई जस्ट गिव यू कि कैसे होगा करके। तो इसमें द आर्गुमेंट क्या होगा, लाइक द आर्गुमेंट विल बी कि बिकॉज ऑफ दिस डी ई, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर एक कंपोनेंट होगा, इधर एक कंपोनेंट होगा, बट दिस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा इसके डी ई की वजह से, समझ रहे, इसके डी ई जो होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा कैंसिल, तो जो बचेगा आपके पास में दैट विल बी डी ई कॉस थीटा ओनली। सो द ई नेट is equals to integration of dE cos theta. Now just solve it, k dq divided by this one root of r square plus d square, this one is r, तो ये हो जाएगा r square plus d square, है ना, और एक cos थीटा हो जाएगा, this one is थीटा, तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3/√3/2। फिर डी क्यू को हम लिखेंगे के सिग्मा डी ए, और दिस विल बी द सेम एज बिफोर। नाउ डी ए यहाँ पे यू कुड टेक, डी ए इज लाइक इसका, लाइक यू हैव टू थिंग दैट यू कुड टेक, you either you take r dr d theta, this is in polar coordinate, और अगर आप ये भी ले सकते हैं 2 pi r dr। इसकी वजह रीज़न ये है कि हम यहाँ पे 2 pi r dr ले सकते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई इसको मैं थीटा नहीं लेता, इसको अल्फ़ा लेता हूँ, क्योंकि दिस वन इज़ अल्फ़ा, ठीक है, अदरवाइज यू वुड गेट कन्फ्यूज विद दिस थीटा इज़ नॉट दिस थीटा। थीटा यहाँ पर होता है जब आप ये लेते हैं दिस एंगल, जब आप लेते हैं कि इसका और इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो लाइक लेट मी नॉट गो इनटू दिस, तो इसकी वजह से आएगा 2 pi r dr, वी कुड टेक इट, हाँ, सबसे पहले यहाँ पे, तो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर के सिग्मा डी 2 pi इंटीग्रेशन r dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2। नाउ द टास्क इज टू जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल, क्योंकि ऑल दी अदर टर्म्स आर जस्ट कॉन्स्टेंट, है ना, तो वी कुड डू दैट 2k sigma d, k sigma d 2 pi, sorry about that, so this will be 2k pi sigma d इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो you what we will do is 2 को यहाँ ले जाएंगे, so इंटीग्रेशन ऑफ 2r dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर what you could do is maybe in integration you will learn the trick, जहाँ पे substitution trick, what you do is r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को आप t ले सकते हैं some substitution, और इसी वजह से 2r dr that will be dt, तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज हो जाएगी, और you would later submit or substitute the initial thing with t, आप ये भी कर सकते हैं। तो दिस इंटीग्रेशन विल बी लाइक सिर्फ ओनली इंटीग्रेशन पार्ट, हाँ, दैट विल बी dt डिवाइडेड बाय t टू द पावर, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपका t, तो t टू द पावर 3/2, and that will be integration of minus 3/2 dt, that will be integration of power minus 3/2 plus 1, और ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय √2, बस दैट्स इट, एंड यू सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो बेसिकली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा k pi sigma d and this one is -2 divided by r square plus d square 1/2, that's it. now अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे द लिमिट आर की है 0 से लेकर r तक, 0 से लेकर r तक। सो इफ़ यू डू दैट, तो आपको इन टर्म्स ऑफ
सिग्मा एंड डी आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। एक के की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, के की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया पाई डी एंड दैट दिस 2 वाज हियर, तो 2 आ गया है ना। नाउ दिस वन इज माइनस की वजह से ये लिमिट चेंज कर देंगे, तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 0 सबसे पहले पुट करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये हो जाएगा 1 बाय डी माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एंड लेटर ऑन जस्ट कैलकुलेशन ना कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दैट्स व्हाट योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द होल डिस्क एट सम पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस होगा d फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और लाइक दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, लेट्स से आई कैप एक्स कैप वॉट एवर यू वुड लाइक। तो so basically what we did, we had solved 2 problems, like 3 or 4 problems, I forgot. So जिसमें where we had a rod, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। सेकेंड the circular ring, उसके सेंटर पे निकाले थे, that was trivial, but for the at some point above it, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो निकाले थे। then because of the disk, this one, the disk itself, है ना। तो या so this is all about the electric field that you would calculate, or like you can take another cases as well कि कैसे करना है। I mean like if you are worried about the other kind of symmetries or the other kind of objects you could have, तो you could have a wire जिसमें infinite wire infinity तक जा रहा है, which has charges, its density is given, और इसके वजह से एक D पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, you could find that as well। तो basically like we will follow the similar process, exactly same process that we did, so and the derivation are not simple and it are not very integrate, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, it will be very easy for you once you do that at your own। तो सिमिलर वे दैट वी डिड देयर, हम डी क्यू लेंगे बिकॉज ऑफ दैट, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक इधर आएगा, एक डी इधर आएगा, द कंपोनेंट स्प्लिट, द सेम गेम दैट वी डिड अर्लियर विल फॉलो दिस एग्जैक्टली सेम वे। एक एंगल होगा थीटा, दिस विल बी 2D cos थीटा, आप cos थीटा निकालेंगे, डी जो ई नेट होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई 2DE cos थीटा, फिर यू विल सब्सटीट्यूट डी का के डी क्यू बाय आर, और आर होगा आपका ये डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ़ यू क्योंकि यहाँ पे वाई डायरेक्शन में होगा तो इसको आप वाई ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देन कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड ऑल दैट सब्स्टिट्यूशन आई कुड डू इट हियर एज वेल, बट इट नॉट दैट टफ। आई मीन के डी क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कॉस थीटा, दिस वन इज डी divided by 3/2, and then dq will be lambda equals to 2k lambda d integration of dy divided by d square plus y square to the power 3/2. Now maybe you will stuck in the integration part, so this integration is not usual integration, तो थोड़ा you might get stuck there, and the limit is minus infinity to infinity, है ना, क्योंकि the rod itself was up to minus infinity से लेकर infinity तक। तो the integration part, तो here also you could do the substitution, लेकिन here the main substitution you could do कि जिसमें आप ले सकते हैं y equals to d tan थीटा, तो y स्क्वायर जो प्लस d स्क्वायर जो डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर विल बी सेक स्क्वायर सेक क्यूब थीटा और डी क्यूब हो जाएगा, और सिमिलरली फिर यहाँ से आप डी वाई निकाल लेंगे, डी वाई विथ टेन डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर तो द ऑल इंटीग्रेशन विल बॉइल्स डाउन इनटू 2k लैम्डा डी इंटीग्रेशन डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय दिस डी स्क्वायर डी क्यूब
sec square sec cube theta. तो see there like the after substituting it got very simple form it has taken. तो ये आ जाएगा d इंटीग्रेशन ऑफ sec theta sorry cos theta d theta. नाउ द लिमिट व्हाट अबाउट लिमिट, तो आप सब्स्टिट्यूट कर ले, अगर जब यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो थीटा को माइनस पाई बाई टू होना चाहिए है ना, क्योंकि tan माइनस पाई बाई टू होता है आपका माइनस इन्फिनिटी एंड tan प्लस पाई बाई टू होता है आपका प्लस इन्फिनिटी. तो बेसिकली द लिमिट विल बी माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू. इट्स जस्ट इंटीग्रेशन यू कुड सॉल्व इट. सो आपको d here से the sin integral तो 1 plus 1 तो there may be like the factor 2 here it should not be there क्योंकि आपने 2 लिया था वहाँ पे 2de cos theta लिया था ना. तो बिकॉज ऑफ 2 तो आपको लिमिट आधी करनी पड़ेगी या फिर यू कुड रिमूव दैट. तो यहाँ पे अगर 2 आ गया पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाई टू. दिस वन इज ऑल्सो 0 से लेकर पाई बाई टू. तो साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा पाई बाई टू 1 माइनस 0 एंड दिट विल बी 2 itself. So the whole equation boils down into simple form. It will take only simple form. So the electric field will be 2k lambda upon d with direction of r in the r cap direction this way. So because of whole line charge or wired charge क्या electric field आएगी at some point at a distance d, that will be this and the direction will be this. So like similarly you could have a lots of example, an object, a figure, a geometry where you could find electric field. But the main thing what you have learned from this video is how to calculate the electric forces, how to calculate the electric field and what electric field actually are. You know, like the ambiguity there about how charges were there and who has told them कि repel करना है, attract करना है. Yeah, that's what the electric field. And we have technically, analytically found out the electric, like the mathematical form of electric field as well. So yeah. So you have learned electric forces, not forces, which is called Coulomb force, and the second is electric field. Some of the calculation of electric field. So with that note, so thank you.